जी को पढ़ेंगे? Yes, sir. ना पढ़ो बेटे। लास्ट। Compare the mode of action of various types of hormones. शाबाश। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास बेसिकली तीन किस्म के हार्मोन्स हैं। एक प्रोटीन इन नेचर है, एक को कह लें आप अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि हमने ये देखें, ये हमारे पास है हार्मोन्स की। हमने कहा था एक स्टीरॉयड है और एक या पेप्टाइड या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि इन हार्मोन का एक्शन किस तरह होता है। हमने पिछली दफा जो है प्रोटीन्स के हार्मोन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन्स देखे थे, और उस ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन में हमने देखा था कि हमारे पास एक सिस्टम है हार्मोन जिसको कहते हैं जी प्रोटीन सिस्टम। हमने कहा है कि जी प्रोटीन सिस्टम जो है वो क्या है, एक खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड की होती हैं। ये देखें, और वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड की होती हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसी एंजाइम्स को स्टिमुलेट या इनहिबिट करना होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो इनको हम कहते हैं जी प्रोटीन्स, और ये चूंकि के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड की होती हैं तो हम इसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। और फिर हमने देखा कि ये तीन किस्म की प्रोटीन्स के कंपोनेंट होते हैं जी प्रोटीन्स के। एक को अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। फिर हमने कहा कि इनके साथ एक और कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये ग्वानोसिन के साथ मिलके बने होते हैं, इसलिए इस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट कपल्ड प्रोटीन्स। एक पार्ट इस प्रोटीन का जो है वो क्या करता है, एक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट ने क्या करना होता है, किसी भी एंजाइम्स को उसने स्टिमुलेट करना होता है। हमने अभी तक देखा कि हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं जो कि ये जी प्रोटीन स्टिमुलेट कर सकती है या इनहिबिट कर सकती है। One type of enzyme is called as adenyl cyclase, and other type of enzyme is called as phospholipase C. So these are two enzymes which are basically embedded into the plasma membrane of the target organs or the target cells, and they are either stimulated or inhibited by the G proteins, which are actually coupled with the receptors. And when these receptors are not occupied by any hormone, then these are called as inactive receptors or G protein coupled receptors. And basically that is why the G proteins are called as molecular switchers. ये इसलिए molecular switchers कहते हैं because they will activate or deactivate the further processes of the mode of action of the hormones which are encoded into the chemical structures. अच्छा, अब हमें पता चल गया कि there are two types of the enzymes or the factor proteins. One is called as adenyl cyclase and other is called as phospholipase C. तो फिर हमने एक एडिनाइल साइक्लेज वाला कल देखा था उस दिन, और अगर आपको याद हो तो व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर द हार्मोन्स, बेटे आप सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, when the hormones are coming, then they combine with the G receptors coupled G coupled receptors. When they are combined, then hormone and this receptors complex initiate another type of proteins which are called as G proteins, and these G proteins has three structure or three component. One is called alpha, other is called beta, and third is called gamma.
and this proteins is also connected by guanosine phosphate. So when there is a no hormones are attached to the receptors, then the component of the alpha component, it is coupled with the guanosine diphosphate, so this is called as inactive form. We have seen in previously with the animation that when hormones combine with the receptors, it stimulates the G proteins, and immediately what happens, the GTP is being removed, and in place of the GTP is combined with this one. And as soon as the GTP is combined instead of the GTP with the alpha subunit of the G proteins, immediately what happens, the alpha units dissociate from the G proteins. So whenever it dissociate from the G protein, so it means it is known as a molecular switcher, and it will goes to stimulate another type of the enzymes, or we can say effector proteins, which are actually embedded into the plasma membrane of the target cell. So as soon as number 3, this alpha unit coupled with the GTP will goes towards the adenyl cyclase, and then it combined with the adenyl cyclase. Immediately when this alpha GTP coupled complex combined with the adenyl cyclase, it will activate the adenyl cyclase, and then adenyl cyclase will be acting as our true enzymes. Then it will convert the adenosine triphosphate into another messenger, which is called as cyclic AMP. So I have told you earlier that the hormone is called as first messenger because it contains all the codes of the action of that are the messages, and that code is now being transferred through the part of receptors, and then receptors and the hormones complex stimulates a G proteins, which is a molecular switcher, and then G proteins stimulate another enzymes, which is called adenyl cyclase, and then adenyl cyclase convert this ATP into AMP. So it means cyclic AMP is known as a code, and this is the same code which is being first present in the form of hormones. Therefore the cyclic AMP is called as second messenger. अब हमारे पास सेकंड मैसेंजर ही ऐसी एक चीज है जिसने आगे जाके सारे के सारे काम करने हैं. अगर फर्ज कीजिए ये सेकंड मैसेंजर्स कोई एपिनेफ्रीन है, फर्ज कीजिए हार्मोन हमारा एपिनेफ्रीन है या नॉर एपिनेफ्रीन है, तो उसने जाके अगर फर्ज कीजिए एडिपोज टिश्यू पे जाना है, तो एडिपोज टिश्यू पे उसने जाके कहना है कि ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा रिलीज की जाए. तो अब ये कैसे कहेगा? बड़ा आसान सा है. उसने रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करना है, अल्फा यूनिट को स्टिमुलेट करना है, अल्फा यूनिट ने एडेनाइल साइक्लेज को और एडेनाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी को. अब साइक्लिक एएमपी के पास ये कोड है कि वो सारे के सारे एंजाइम जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए काम करते हैं उनकी प्रोडक्शन को इनहांस कर दिया जाए, तो वो इनहांस हो जाएगी, एंजाइम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे. जब ये सारे के सारे एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, ये साइक्लिक एएमपी फिर क्या करेगा, फास्फोडाइएस्ट्रेज इसको इनएक्टिवेट कर देगा, इसको 5-साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा. और जो ही ये कन्वर्ट हुआ, यहां से जो अल्फा जीटीपी कंपोनेंट था वो वहां से डिसोसिएट हुआ और जाके वापस उसने जी प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लिया. जो ही कंबाइन करने लगा, जीटीपी जो थी वहां से निकल गई और वापस जीटीपी में कन्वर्ट होगी, और इस तरह हार्मोन का एक्शन खत्म हो गया. जी बेटे, समझ लगी आपको? यस सर. ये वही आ रहा था जैसे जो कि हमने
जी सर साइक्लिक एएमपी इनएक्टिवेट किस टाइम होगा? साइक्लिक एएमपी हमारे उसी में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेज। वो फर्दर इसको मेटाबोलाइट कर देता है, मेटाबोलाइज, और उसको 5 साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, जो कि इनएक्टिव हो जाता है। और अगर इसका मतलब अगर आपका मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर इनएक्टिवेट हो गया, आपकी आगे से सारी की सारी कोडिंग खत्म होगी। मैं एक मूवी ढूंढ रहा हूं, अगर वो मुझे मिल गई तो वो जो उस दिन देखी थी वो मैं आपको चलाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या बनती भी है या नहीं। फुल स्क्रीन कहाँ गया? ये विंडो, और विंडो में कोई नहीं आ रहा। एक सेकंड बेटे। अच्छा जी, अच्छा आप मुझे बताएं, आपको ये नजर आ रही है मेरी YouTube की फाइल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये When देखें, the मैं एक appropriate protein ligand binds to अब ये the चलाया receptor, मैं, ये जरा the देखें। receptor undergoes a conformational change that is transmitted to अच्छा आप मुझे बताएं, आ रही है नजर आपको सबको? Yes, sir. आ रही है. चले मैं अब इसको बड़ा करता हूं तो आप जरा which देखेंगे now ये क्या है। activate a trimeric GTP binding protein, or G protein for short. As the name implies, a trimeric G protein is composed of 3 protein subunits called alpha, beta, and gamma. Both the alpha and gamma सर आवाज subunits have डबल आ रही covalently है. attached lipid मैं tails अपनी बंद कर that देता help हूँ। anchor the G protein in the plasma membrane. In the absence of a signal, the alpha subunit has a GDP bound, and the G protein is inactive. In some cases, the inactive G protein is associated with the inactive receptor, while in other cases, as shown here, it only binds after the receptor is activated. In either case, an activated receptor induces a conformational change in the alpha subunit, causing the GDP to dissociate. GTP, which is abundant in the cytosol, can now readily bind in place of the GDP. GTP binding causes a further conformational change in the G protein, activating both the alpha subunit and beta-gamma complex. In some cases, as shown here, the activated alpha subunit dissociates from the activated beta-gamma complex, whereas in other cases, the two activated components stay together. In either case, both of the activated components can now regulate the activity of target proteins in the plasma membrane, as shown here for a GTP-bound alpha subunit. The activated target proteins then relay the signal to other components in the signaling cascade. Eventually, the alpha subunit hydrolyzes its bound GTP to GDP, which inactivates the subunit. This step is often accelerated by the binding of another protein, called a regulator of G protein signaling, or RGS. The inactivated GDP-bound alpha subunit now reforms an inactive G protein with the beta-gamma complex, turning off other downstream events. As long as the signaling receptor remains stimulated, it can continue to activate G proteins. Upon prolonged stimulation, however, the receptors eventually inactivate, even if their activating ligands remain bound. In this case, a receptor kinase phosphorylates the cytosolic portions of the activated receptor. Once a receptor has been phosphorylated in this way, it binds with high affinity to an arrestin protein. जी बेटे, समझ लगी आपको? यस सर. चलें, ये वही वाली थी। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी हमने एडिनाइल साइक्लेज वाली बात की थी, अब हम ऐसा करते हैं कि
अब हम दूसरा एंजाइम्स को देखते हैं कि दूसरे एंजाइम्स का क्या फायदा है और वो क्या काम करता है, वो हम उस पे अब आने की कोशिश करते हैं। ये जी विंडो खोलें और आप शेयर करें। लेंगे अब हम सेकंड में चलते हैं एंड सेकंड हार्मोन जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज फास्फोलाइपेज सी। ये थोड़ा सा हम देखते हैं और फिर देन वी कैन सी हाउ इट। नीचे अगर देखें ना बेटे, मैंने इसी स्लाइड के नीचे यूट्यूब का वो भी दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, साइटेशन, कि अगर आपने यूट्यूब पे कोई देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं यूट्यूब पर। चलें जी, जी आवाज आई है, चलें शुरू करें। यस सर। चलें जी, फर्स्ट स्टेप्स आप में से कोई मुझे बताता चला जाए, कौन बताएगा मेरे लिए? स्क्रीन शो नहीं हो रही? हार्मोन आ रहा है और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जी, सबसे पहला स्टेप बिल्कुल ठीक किया आपने, हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ, ये रहा। और फिर क्या बनेगा? बेटे कोई तो मेरे साथ आए ना। सर फिर वो जी प्रोटीन बिल्कुल सही है, हाँ जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन के 3 कंपोनेंट होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ठीक है, फिर वो अल्फा के साथ आके अटैच हो बिल्कुल। जाएगा। उस वक्त जीडीपी लगा होगा, वो जीडीपी को निकाल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीटीपी में। जीटीपी। ठीक हो गया। फिर वो जीटीपी कपल्ड अल्फा यूनिट वहां से डिसोसिएट होके किसके पास जाएगा? किसी एंजाइम्स के पास जाएगा। अब ये एंजाइम्स एडिनाइल साइक्लेज नहीं है, बल्कि कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोलाइपेज से। शाबाश। पहले हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज था, एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया था? एटीपी को किस में कन्वर्ट किया था? साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी। ये है फास्फोलाइपेज। इसने क्या करना है? फास्फोलिपिड्स जो हमारी हैं, जिसको के जो सबसे इंपॉर्टेंट है फास्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करना है डाइएसाइल ग्लिसरॉल में। और सॉरी, फास्फोलिपिड्स को कन्वर्ट करना है फास्फोइनोसिटोल IP3 में, ये रहा IP3, और एक में करना है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से, अब आप ये देखें जरा क्या हुआ। आपने अभी बताया नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ? हार्मोन ने रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन किया, रिसेप्टर हार्मोन के कॉम्प्लेक्स ने जी प्रोटीन को स्टिमुलेट किया, जी प्रोटीन में से उसने जीडीपी निकाल दी, उसकी जगह जीटीपी लगा दी, अल्फा यूनिट्स डिसोसिएट हो गया वहां से और सीधा दूसरे एंजाइम्स के पास गया जिसको कहते हैं फास्फोलाइपेज सी। उसने क्या किया? फास्फोलाइपेज ने फास्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया डैग में, डाइसाइल ग्लिसरॉल और अनिसोटिल ट्राइफॉस्फेट में। ठीक हो गया बेटे? आप मुझे बताओ, यहां तक समझ लगी? यस सर। Yes, sir. No, this diacyl glycerol and the IP3 is called as second messengers. सेम उसी तरह जिस तरह के एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी को एएमपी में जब कन्वर्ट किया तो एएमपी वाज कॉल्ड एज सेकंड मैसेंजर्स। अब उसी तरह उस एंजाइम्स ने एक PIP2 को कन्वर्ट कर दिया डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3। नो, दीज टू आर कॉल्ड एज सेकंड मैसेंजर्स। तो मेरा क्वेश्चन हुआ, व्हाट डू यू नो बाय सेकंड मैसेंजर्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेकंड मैसेंजर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी? तो आप लिख देंगे इसका जवाब? यस सर। चलें, ये तो इजी हो गया। अब क्या करना है? डाइएसाइल ग्लिसरॉल ने क्या करना है? उसने प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट किया था, इसने प्रोटीन काइनेज सी को स्टिमुलेट किया।
और जबकि IP3 ने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ जाके बाइंड किया, और बाइंड करके वहां से, आपको पता है उसमें तो कैल्शियम स्टोर होता है, तो इमीडिएटली उसने उस चैनल्स को ओपन किया, और जो ही चैनल्स को ओपन किया, कैल्शियम जो था वो सेल से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम फिर और डाइसाइल ग्लिसरॉल ने मिल के फास्फोकाइनेज सी को काम किया, और आगे वही जो कैस्केड सिस्टम चलता है तो चलता रहने दे। इसलिए बाज का साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं साइक्लिक एएमपी के अलावा डाइसाइल ग्लिसरॉल और IP3 भी सेकंड मैसेंजर है, और कुछ कहते हैं नहीं भाई, कैल्शियम इज आल्सो एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा, इसके लिए भी एक फिर फिल्म बना, देखें जरा, अगर हमारे पास है तो फिर हम आगे चलते हैं। Yes, sir. चले, लें जी, अब एक और फिल्म देखें। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा बेटा। सर फिर हाँ, हम सेकंड मैसेंजर हम 3 टाइप्स के कहेंगे या 4 टाइप्स के कहेंगे? फिर आप सेकंड मैसेंजर कह लें, मुख्तलिफ टाइप्स नहीं इसको कहेंगे, हाउ मैनी, हाँ आप टाइप कह दें, 4 पे कह देंगे ना फिर। साइक्लिक एएमपी, डाइसाइल ग्लिसरॉल, IP3 एंड कैल्शियम। यस सर। You may have growth हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? thyroid hormone or luteinizing hormone coursing through your circulation. बेटे आवाज आ रही है आपको? Some of these Yes, सर sir. आ रही है, बस आप अपने ऑफ चल, कर मैं दीजिए। अब Yes, अपनी sir. आवाज बंद करने लगा फिर। bind to intracellular receptors. Others, such as protein and peptide hormones, are hydrophilic and must bind to receptors in the plasma membrane of target cells. This brings up an important point. How does the extracellular signal of a hormone get transmitted into the cell? This is commonly accomplished using second messengers, small molecules such as cyclic AMP or calcium. Second messengers relay information from the first messenger, the hormone, into the cell. These second messengers are often produced using common proteins associated with the plasma membrane called G proteins. G proteins are coupled to receptors in the plasma membrane of the cell. G protein coupled receptors can mediate the responses to signals such as hormones and neurotransmitters. Many different types of ligands can activate G proteins such as fatty acids, proteins, peptides, or amino acids. Interestingly, about half of all known drugs work through G protein coupled receptors. Let's take a closer look at how G protein signaling mechanisms work. Hormones floating through the bloodstream may circulate freely or may be complex with binding interstitial fluid, the plasma membrane. The G protein is responsible for relaying the hormonal information to downstream signaling pathways within it, a beta subunit, and a gauge. It's bound GDP for GTP. With this GTP bound, the G protein is in an active state. The activated G protein dissociates into the alpha subunit and a beta gamma complex. The actual target of the activated subunits depends on the G protein that is activated. In this video, we will first examine the pathway in which cyclic AMP serves as a second messenger. The G protein in this case is a stimulatory protein called GS. The activated alpha subunit of GS binds to the enzyme adenylyl cyclase.
This enzyme converts ATP, adenosine triphosphate, into cyclic AMP. Cyclic AMP can serve directly as a signaling molecule, or it can act indirectly through activation in proteins within the cell. For example, 4 cyclic AMP molecules can bind to the regulatory subunits of protein kinase A, or pKa. This allows the catalytic subunits of pKa to dissociate, and pKa can then end G protein signaling, such as ACTH, glucagon, LH, PTH, and TSH. For cell function, the cell must also be able to stop the G protein signaling pathway after it has accomplished its task. Regulatory subunits. In order for the G protein to become inactivated, it's then ready to be stimulated by another hormone. G proteins can also initiate another common signaling pathway that utilizes intracellular calcium as a second messenger. Once again, the hormone dissociates from many complex binding proteins and moves out of the capillary and into the interstitial fluid. The hormone then binds to a G protein coupled hormone receptor in the plasma membrane of the target cell. The G protein in this signaling pathway is called GQ. The alpha subunit of the G protein exchanges its bound GDP for GTP, and the activated alpha subunit dissociates from the rest of the G protein. In this particular pathway, the alpha subunit activates phospholipase C, or PLC. This enzyme acts on the molecule phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, also called PIP2. Phospholipase C cleaves PIP2 into 2 molecules, inositol 1,4,5-triphosphate, or IP3, and diacylglycerol, DAG. IP3 is a small water-soluble molecule that is released into the cytosol and travels to the endoplasmic reticulum. As you have seen in previous lectures, the endoplasmic reticulum stores a large amount of calcium in the lumen. IP3 binds to a ligand-gated calcium release channel in the membrane of the endoplasmic reticulum, and calcium flows into the cytosol. At the same time that IP3 is initiating calcium release, DAG is migrating through the plasma membrane to activate protein kinase C, or PKC. The C in PKC is named because calcium is necessary for full activity of this kinase. The calcium released from the ER by IP3 assists in full activation of PKC. Once activated, PKC phosphorylates a number of intracellular targets, thus transmitting the initial message of the hormone binding to the hormone receptor. In order to terminate this signal, calcium is resequestered in the endoplasmic reticulum. And PIP2 is reformed. The alpha subunit of the G protein hydrolyzes its bound GTP into GDP, and the G protein reassociates. This restores the resting state of the cell so that another hormone can initiate cellular effects. Today we have looked at 2 of the major mechanisms by which G proteins operate within a cell. This is one of the major ways in which hydrophilic hormones are able to exert intracellular effects. Please review this video as many times as needed to Excuse me, sir. जी बेटे
सर वो जो कैल्शियम आया है वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फोस्फोकाइनेज सी से आया ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस कैसे आया है? दोबारा पूछें बेटे। सर वो जो कैल्शियम वो फोस्फोकाइनेज सी के पास गया था ना कैल्शियम, जी जी। वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया ना, वो जब उसकी इनएक्टिवेशन हुई है, तो वो इनएक्टिवेशन कैसे हुई है? बेटे वहां पे स्पेशल चैनल्स आर अवेलेबल विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम एटीपीएस चैनल्स। वो क्या करते हैं, वो सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं, वो जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में होता है उसको वापस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेज देते हैं वहां से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जिसकी वजह से ये सारे का सारा वापस स्टेप बैक हो जाता है। ठीक है सर इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा ना, लाइक कि अगर एक सिग्नलिंग पाथवे कंप्लीट हो चुका है तब वो सिग्नल लेगा और फिर ये हार्मोन इनएक्टिवेशन की तरफ जाएगा। नहीं, मैं समझ नहीं सका क्वेश्चन को बेटे। सर जैसे तहरीन कह रही है कि कैल्शियम वापस कैसे जाएगा, तो इसमें ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा हार्मोनल सिस्टम। नहीं, एक बार पाथवे कंप्लीट हो गया है तो नहीं, हार्मोन पे नर्वस सिस्टम कहां से आ गया? हार्मोन का अपना जो ही काम खत्म कर लिया उसके बाद ये सारा रिवर्स में चला। जैसे वहां पे फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम नहीं था जिसने दोबारा साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक डैश 5 एएमपी में, तो वो इनएक्टिव हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी वो फैक्टर है जिसमें अभी आप पूरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं, ये जनरल से हम बात कर रहे हैं, जो उस पूरे हार्मोन सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते होते हैं। ओके सर। ठीक है। अभी हमने बेटे जो पढ़ा है ना सारा, वो अगर आप देखें तो हमने पढ़ा सारे का सारा के जिनके रिसेप्टर सेल के बाहर होते हैं और फिर वो अंदर जाके जी प्रोटीन्स के मुताबिक। लेकिन अगर हम दूसरी किस्म के अगर देखना चाहें तो वो दूसरी किस्म के तो ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, वो वाटर सॉल्युबल ही नहीं होते, जो कि फैट सॉल्युबल है। और अगर फैट सॉल्युबल है तो फिर इसका मतलब है वो स्टीरॉयड हार्मोन, और स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स तो सेल के अंदर होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर वो साइटोप्लाज्म के साथ हैं तो फिर वो किस तरह के रिसेप्टर्स हैं, नंबर 1। फिर वो रिसेप्टर्स हार्मोन कैसे एक्टिवेट करता है, नंबर 2। फिर जब हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो क्या करता है आगे जाके, क्योंकि इसका तो हमें पता चल गया कि ये जाके एडिनाइल साइक्लेज या फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देता है, और वो आगे जो होते हैं वो सेकंड मैसेंजर बना देते हैं, और वो सेकंड मैसेंजर जाके एंजाइम मशीनरी को एक्टिवेट कर देते हैं। हमने ये देखना है कि अब ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जब ये रिसेप्टर्स और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये किस तरह स्टिमुलेट चीजों को करते हैं। सही? अच्छा, अगर ये है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्टीरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, या इवन समटाइम्स हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होंगे। एक अगर जनरल सा हम देखें अगर स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर्स, तो ये एक शक्ल में हमने दिखाई हुई है जिसके के 6 पार्ट हैं उसके, और इसके 6 डोमेन्स को देखें तो आपको देखेंगे कि ये 6 डोमेन्स ऐसे हैं, क्योंकि ये भी प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स और प्रोटीन जैसे बाइट की थी, तो ये इसके डीएनए बाइंडिंग एक डोमेन है जो 2 जिंक मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है। यहां से हमें एक अंदाजा हुआ हो ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये जरूर जाके जो डीएनए के साथ जाके कंबाइन और कपल्ड करता होगा, ये हमें पता है। और एक कंपोनेंट जो है उसको कहते हैं हार्मोन बाइंडिंग डोमेन्स या डाइमराइजेशन। इसका मतलब ये वो पार्ट है जो हार्मोन बनाता है, और हार्मोन और रिसेप्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कार्बोक्सिलिक एंड या सी टर्मिनल के पास होता है। और ऐसा जो डीएनए डोमेन है जिसने जाके कि हो सकता है डीएनए के साथ अटैच करना है, वो अमाइनो ग्रुप के साथ करीब आता हो। लेकिन एक चीज हमें पता चल गई कि ये सारे का सारा जो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। लेट्स सपोज अब हम बारी बारी देखते हैं बेटे, और बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, लेट्स सपोज स्टीरॉयड हार्मोन आ गए, और आपको पता है स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं
या इवन थायराइड हार्मोन, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन फैट सॉल्युबल है। जब फैट सॉल्युबल है तो आपको फौरन पता लग गया ये तो सेल मेम्ब्रेन के पास थ्रू कर जाएगा। जो ही वो सेल मेम्ब्रेन के पास थ्रू गया, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशल रिसेप्टर्स हैं, वो इस सेकंड पार्ट में उस रिसेप्टर्स के साथ अटैच कर देगा जो कि सी टर्मिनल एंड के पास है। अब जो ही ये बना तो हम इसको कह देंगे हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। जो ही हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बना, हमें पता है इसके ऊपर 2 जिंक मॉलिक्यूल है, तो जो ही रिसेप्टर बना ये मूव होता 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता करता सीधा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करते हुए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ये सीधा एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास चला गया और उसके पास 5' और 3' होते हैं। हमने ये देखा कि जो जिंक मॉलिक्यूल है या जो डीएनए के साथ कंबाइन करना है, वहां जीन्स के ऊपर एक स्पेशल टारगेट ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं स्टीरॉयड इफेक्टर्स, स्टीरॉयड रिसेप्टर्स इफेक्टर, यानी वो खास न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक चेन है या सीक्वेंस है जो कि रिकॉग्नाइज करता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के, जो कि रिसेप्टर्स के पास है जो अमाइनो ग्रुप के अंदर है। बेटे समझ लगी आपको? यस सर। यानी स्टीरॉयड, मैं दोबारा से बताता हूँ, स्टीरॉयड हार्मोन्स आए, चूंकि वाटर इनसॉल्युबल है तो वो अंदर को, उसके अंदर जाके उन्होंने क्या किया, रिसेप्टर्स बाइंडिंग जो कि सी टर्मिनल के साथ है उसके साथ बाइंड किया हार्मोन ने, तो बना हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स यूं ही बना, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुआ और सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ डीएनए के 5 टर्मिनल एंड के ऊपर एक खास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, उस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन के उस रिसेप्टर्स को, वहां पे जाके ये वो कंबाइन कर लिया। वो जो एरिया है या वो जो लेवल है या वो जो साइट है उसको कहते हैं स्टीरॉयड रिसेप्टर्स इफेक्टर साइट। क्या कहते हैं उसको? स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। उसको क्या कहते हैं? मैं गलत कह गया, स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, SRE। अब ये SRE हर एक के लिए स्पेसिफिक है। जो ही ये बाइंड करता है डीएनए डोमेन, तो बेसिकली अब ये क्या करता है, इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर। अगर आपको प्रोटीन याद हो और आपको पता है जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस मैसेंजर RNA। तो बिल्कुल सही है, जो ही ये SRE के साथ अटैच हुआ, जो ही स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ अटैच हुआ, इट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और जो ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बना तो मैसेंजर, आपको पता है मैसेंजर RNA बन गया। और आपको पता है जो ही मैसेंजर RNA बना वो साइटोप्लाज्म में आ गया और उसने क्या किया, ट्रांसफर RNA को मूव किया राइबोसोम्स के ऊपर और नई से नई प्रोटीन्स बनानी शुरू कर दी। तो अगर इसी चीज को अगर आप देखें तो ये हम वही चीजें इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दी हुई है। अगर आपको थोड़ा सा समय नहीं लगी तो ऐसा करते हैं, एक मूवी देख लेते हैं, फिर 2 मिनट का क्लिप है एनिमेशन का। ठीक है जी? यस सर। चले। यस सर। जी नजर आ रहा है बेटे आपको ये मेरी स्लाइड? यस सर। यस सर। चले, ये तो अच्छा हो गया। Steroid hormones are not water-soluble. They travel in the blood attached to protein carriers. When steroid hormones arrive at their target cells, they dissociate from their protein carriers and pass through the plasma membrane of the cell.
Some steroid hormones bind to specific receptor proteins in the cytoplasm and then move as a hormone receptor complex into the nucleus. Other steroids travel directly into the nucleus before encountering their receptor proteins, not shown. The hormone receptor protein, activated by binding to the hormone, is now able to bind to specific regions of the DNA. These DNA regions are known as the hormone response elements. The binding of the hormone receptor complex has a direct effect on the level of transcription at that site. Messenger RNA, mRNA, is produced, which then codes for the synthesis of specific proteins. जी बेटे, समझ लगी आपको? Yes, sir. चलें, ये Yes, आज sir. हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन खत्म कर दिया। हमने आज इस बेसिक स्ट्रक्चर को भी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी को भी खत्म कर दिया है। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 2-3 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा, कंपेयर द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आप बता देंगे कि देयर आर 2 मैकेनिज्म, वन इज फॉर द स्टेरॉयड हार्मोन एंड अदर इज फॉर द प्रोटीन और प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन। जो प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन है वो आपको समझ लगी कि उसके 2 वो सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू काम करता है, और उस सेकंड मैसेंजर्स में हम आगे 2 किस्म कर देते हैं, एक एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम्स कपल्ड और स्टिमुलेटेड, और दूसरा हम कह देते हैं साइक्लोफॉस्फेज वाला, फास्फोलाइपेज सी वाला। दूसरा जो है मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन। वो स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म होते हैं, वो जाके फिर अपना स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जो कि डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए वो एक्ट करते हैं एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर वहां से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, मैसेंजर आरएनए वगैरह, और फिर वो प्रोटीन्स वगैरह बना देते हैं। सही बेटे? With this one we finish this today's lecture। कल हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाना चाहेंगे और फिर हम चेकेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो कल हम एंटीरियर पिट्यूटरी का थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, और कल फिर हम हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर भी शायद पढ़ने की कोशिश करें। ठीक हो गया? Yes, sir. चले, अल्लाह ताला खैर करे। एनी क्वेश्चन? No, sir. चले फिर, विश यू गुड लक जी। सुबह मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।